Okay, welcome everyone in this session. Today we have Monica Priyatama Miss. She is present here as a resource person. She is going to train us on the topic of teaching strategies in science secondary level. So how to teach science in secondary level, she is going to deliver us. So I request her to start this session. Ma'am, please. Thank you, sir. Good morning and a very warm welcome to all my colleagues and teachers. Today's my topic for in-house session is teaching strategies for science at secondary level. मतलब माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के लिए शिक्षण रणनीतियाँ. First of all, before going to this topic, we will know what actually science is. पहले हम जानेंगे कि वास्तव में साइंस है क्या. ओके, व्हाट इज साइंस? सर नेक्स्ट टाइम. What is science? Science is the process of gaining knowledge and investigating by making observations, posing questions and testing through experimentation. Science ज्ञान प्राप्त करने, gaining knowledge and investigating by making observations. Observations के through यानी निरीक्षण के थ्रू निरीक्षण करने और प्रश्न पूछने, posing questions, प्रश्न पूछने और प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण करने की प्रक्रिया है. ठीक है, क्योंकि साइंस मतलब साइंस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि साइंस एक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. ओके, क्योंकि साइंस में देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी myths and assumptions in science. Okay, science is logical and it totally based upon on facts. इसे आप सिर्फ theoretically बच्चों को आप सही तरीके से appropriate information नहीं दे सकते. ओके, जितना प्रैक्टिकली आप उन्हें पढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा कैच कर पाएंगे and that knowledge will retain in their mind for a long term. Okay, साइंस फैक्ट्स के बेसिस पे कोई मिथ्स या assumptions नहीं होते, यानी आप साइंस में कभी भी अंदाजा या अनुमान नहीं लगा सकते. It is totally based on 100% accuracy. Okay, बट आज की डेट पे जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. हाँ, ऐसे एक मतलब फन के साथ सीखा जा सकता है. ठीक है, नॉलेज को गेन किया जा सकता है. बट स्टूडेंट्स आज की डेट में साइंस को एक सब्जेक्ट को एक बर्डन के रूप में देखते हैं. ठीक है, वो इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना कि ये इंटरेस्टेड है. ठीक है, इसके पीछे मुख्य कारण है स्कूल्स में lack of an ideal well-equipped science laboratory. Okay, lack of teaching skills or facilities, lack of using appropriate or proper teaching methods. अगर साइंस को प्रॉपर मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाए और साथ ही एक आइडियल साइंस लेबोरेटरी की जहाँ पर फैसिलिटीज हो इस स्कूल में, तो साइंस बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है और वे उसे एक फन के रूप में एंजॉय कर सकते हैं और सीख सकते हैं. So now let us know about some teaching strategies for science at a secondary stage. Okay, sir, next slide. Okay. The teaching strategies are: first, knowledge of subject matter, planning and attitude. Second one is engage, explore, explain, elaborate, evaluate, means 5 years, or oral presentations. Third one is active. इसको हिंदी में पहला है विषय के कंटेंट का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. प्लानिंग, योजना करना, जैसे हम लेसन प्लानिंग करते हैं. ठीक है, पढ़ाने के पहले. और उसके प्रति अपना नजरिया होना, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका
दृष्टिकोण या नजरिया क्या है. ओके. The second one is engage, explore, explain, elaborate, evaluate 5 years or oral presentations. Engage व्यस्त रखना, खोज करना, वर्णन करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना या फिर मौखिक प्रस्तुतिकरण. Third one is active learning, hands-on activities और think, pair, share और group work. क्रियाकलापों प्रयोगों पर सीखने वाले की सक्रियता, जोड़ियों में चिंतन करना या एक दूसरे से शेयर करना या फिर समूह कार्य. Fourth one is excursions for developing science understanding. एक संगठित और सुव्यवस्थित भ्रमण for better understanding experience. Fifth one is next. Case studies. Yes. Sir, और भी points थे. I'm very fine. 5, 6 are not. Okay. Next one, fifth is case studies or mini conferences or plays. Okay. Mini conference छोटा मोटा एक सम्मेलन या संगोष्ठी. Case study वो आगे हम करेंगे, डिस्कस करेंगे. Last one, 6 concept maps. Now one by one I will explain. First one is knowledge of subject matter. यानी सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान होना, जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, कंटेंट का ज्ञान होना. इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में, the importance of subject knowledge that it helps teachers to empower students and ensure that the pupils make all the progress. Sir, ऐसा क्यों हो रहा है? बस बढ़ाइए. और नीचे. सर नीचे. ओके. इसमें क्या किया जाता है, जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स के प्रीवियस लेवल को जज करते हैं. ओके. वो जिस कंटेंट को या जिस टॉपिक को वो पढ़ाने जा रहे हैं उनमें उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को पहले से कितना नॉलेज है. ठीक है. इससे क्या होता है, टीचर्स को क्या मदद मिलता है कि टीचर्स ये जान पाते हैं कि बच्चे किस लेवल तक की जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं बच्चे. ठीक है. और उनमें कितना और आगे तक जाने की, ठीक है, आगे तक कितने लेवल तक उनको और लाया जा सकता है. ठीक है, उस कंटेंट के रिलेटेड. इससे हर बच्चे का पोटेंशियल ये लेवल पता चलता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इस कंटेंट को किस लेवल तक बच्चे को पढ़ाया जाए, कहां से शुरू किया जाए. ओके. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग, योजना. Next one is plan. Planning shows itself in the clarity of learning objectives, good lesson structures, and the effective questioning of pupils. Planning is just like a lesson plan. लेसन प्लान में कैसे हम किसी जब क्लास देने जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर एक लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं. ओके. उसमें क्या मेंशन है कि हमको कहां से शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस. ठीक है. सीक्वेंस वाइज हमें एक प्रिसाइज वे में उसको पढ़ाते हैं. ठीक है. तो वो सारा हम लोग पहले लेसन प्लान की तरह डिसाइड कर लेते हैं. प्लानिंग के अंदर हमें पहले जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या पहले हमको एक करना देखना है. पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये कंटेंट हम किस पर्पस से, ये जानकारी हम डिलीवर कर रहे हैं किस पर्पस के लिए. ठीक है. इसके साथ ही कंटेंट का स्ट्रक्चर प्रॉपर एक प्रिसाइज वे में हो, सीक्वेंस में हो. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप, जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो. इसके साथ ही और स्टूडेंट्स द्वारा क्वेश्चन पूछने की वो मोटिवेट करना. बच्चे मतलब ऐसे इस तरह से हम लोग को उन्हें समझा डिलीवर करें कि बच्चे मोटिवेट हो, क्यूरियस हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए. ठीक है. The third one is attitude. Next. When considering teaching strategy
strategies, we have to understand the powerful influence of the teacher's affective domain. This domain includes the teacher's emotions, motivations, attitudes, and values. A teacher who displays enthusiasm for teaching science demonstrates positive emotions about science, which can influence students' attitudes and consequently their learning. इसमें क्या है कि टीचर का एटीट्यूड पहले इस तरह का होना चाहिए कि उनको उस सब्जेक्ट या उस कंटेंट के प्रति उनका अपना पहले जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इमोशनली बिल्कुल, और एक उत्साह होना चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर्स को फॉलो करते हैं। टीचर्स का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चे भी उनमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा, सीखने के लिए उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा डेवलप होगा। ओके, तो टीचर्स को इस तरह का एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण, नजरिया ऐसा रखना चाहिए पूरे। नाउ नेक्स्ट वन इज Next. Next slide, sir. Yes. 5 years. Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Okay. Here, students engage in full inquiry and learning in an environment which induces them to think of a question and shape it into something they can investigate, which is called hypothesizing. Planning and investigation, collecting data, analyzing that data, forming a conclusion, communicating their findings verbally or in writing. इससे 5 years के नाम से भी हम लोग एक जॉब को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, ये स्टेप वाइज एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें पहले क्या है, इंगेज करना बच्चे को। इंगेज टीचर्स ऐसे एक सिचुएशन या ऐसे प्रॉब्लम बच्चे के साथ शेयर करते हैं या उन्हें देते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए। तो पहले बच्चे जब वो क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे उस क्वेश्चन पे थिंक करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरह के आइडियाज उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लोर, उसके बारे में डिटेल से वो जानना चाहते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक का क्वेश्चन जैसे व्हाट आर द कॉमन फीचर्स बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ व्हेल। व्हेल और ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन फीचर्स क्या है, दोनों में सिमिलरिटी, ठीक है। अब ये आपने टीचर आप अपने बच्चों को ये एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और बच्चे अब इस पे क्या कॉमन फीचर्स है व्हेल और ह्यूमन बीइंग में, अब ये ढूंढने, ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर, खोजबीन करेंगे। एक्सप्लोर के बाद वो क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज थिंक, पहले तो सोचे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आखिर इसका सही जवाब क्या है, कहां से मिलेगा, ठीक है। प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कहां से मिलेगा, किस सोर्स से मिलेगा। फिर कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग उसके बारे में डाटा, तरह तरह के डाटा डिफरेंट सोर्स से, तो एनीवेयर, आजकल इंटरनेट का है, बुक से, लाइब्रेरी से, कहीं भी वो जाकर डाटा वो कलेक्ट कर, उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट एनालाइजिंग डाटा, अब डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है, जिस सोर्स से मिला सारे डाटा कलेक्ट करके एक जगह असेंबल कर लिया। उसके बाद अब उसमें हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि कॉमन क्या सिमिलरिटीज है। एनालिसिस करने के बाद फाइनली कंक्लूजन को पहुंचते हैं। उन्हें जब वो मिल जाता है ज्ञान कि नहीं, हाँ क्या डिफरेंसेस है, कॉमन फीचर्स है, जब उन्हें वो मिल जाता है तो उसे क्या करते हैं, वो फिर पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट करके उससे अपने लैंग्वेज में अपने तरह से वो उसे एलाबोरेट करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसे नेक्स्ट forming conclusion and then communicating their findings verbally or in writing, और उसे शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं verbally या फिर लिखकर, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स क्या है ह्यूमन बीइंग और व्हेल में, बोथ आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट की कैटेगरी पे आते हैं, उनमें क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, एंड whale or both are mammals. Yeah. So finally, ये conclusion पहुंचे। Now, next one is active learning. So, next. Active learning
hands-on activities, think, pair, share or group work. Active learning means कुछ करके सीखना, क्या? एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें एक होता है hands-on activities. When students are taught about plants, root, leaves and flowers, they are provided with live samples and taken to a garden. As a result, they are able to exit their classroom, find familiar plants and point out the names and parts of them. Here are the consequences of the active learning. Students connect experiments to real life scientific knowledge, which has long-lasting learning effects. Okay. जब स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ते हैं, साइंस का मतलब है डायरेक्ट अनुभव. Apparently आप कोई चीज को देख के उसे एक विजुअल परसेप्शन करना, ठीक है. विजुअली आप जितना आप वो कीजिएगा, आप अनुभव एक्सपीरियंस, उतना आपका वो जल्दी बच्चे कैच कर पाते हैं, ठीक है. और वो जो नॉलेज वो उनको मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में, माइंड में रिटेन रहता है. प्रत्यक्ष प्रमाण भी ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ, लिविंग सैंपल्स. तो जब स्टूडेंट्स को किसी भी कंटेंट के बारे में बताया जाता है, तो जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया या वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो जो भी बताया जाता है थ्योरेटिकली उन्हें, तो वो जब लिविंग सैंपल्स के उनके हाथ में आता है या देखने को मौका मिलता है उन्हें, तो वो बेसिस पर फिर जैसे आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया है, ये रूट्स है या जो भी व्हाटएवर, उसमें बस वस्कुलर टिश्यू और क्या ये सब जो सेकेंडरी स्टेज पे, तो वो फिर जाके लिविंग सैंपल्स जब उनके हाथ में आता है तो वो चीज को सर्च करते हैं कि कहाँ पर उस प्लांट में वस्कुलर टिश्यू है, कहाँ पर जाइलम्स है, कहाँ पर फ्लोएम्स है, हाँ, वो सारी चीज को वो देखते हैं. और इससे वो जो थ्योरेटिकल पढ़े हैं वो अच्छा हो गए, मतलब अच्छे तरह से वो पढ़ पाते हैं. इससे भी ज्यादा इफेक्टिव हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, खुद हाथों से किया जाने वाला एक्टिविटी, जैसे लिविंग प्लांट सैंपल्स का नेमिंग करना. अब उनके लिविंग सैंपल उनके हाथ में आ गया, अब उनके बारे में वो उनका नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर जो होता है, ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन करके प्लांट्स को जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं उन्हें अलग करना, डिफरेंशिएट करना, ओके, अलग अलग कैटेगरी वो करना. देन प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन करना. वो क्या करते हैं, अपने हाथ से एक सीड को प्लांट करते हैं, उनका ग्रोइंग स्टेज वो सारा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. जो उन्होंने पढ़ा है वो लाइवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. या फिर कोई भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलर जो भी है, वो या तो मॉडल के रूप में खुद से बना रहे हैं, ठीक है, या थ्रू पिक्चर, ठीक है, किसी के थ्रू वो, और ऐसे करके वो ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, क्योंकि वो अपना जो नॉलेज है वो वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट थिंक, पेयर, शेयर. Next page. Yes, yes. Think, pair, share. इसमें बेसिकली, इसमें तो इतना दिया नहीं है स्लाइड्स में, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, कहीं पे बाहर या कोई गार्डन या ऑर्नामेंट मिलेगा बच्चे को, और वहां पर उन लोगों को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जो आपने, और उन लोगों में दो बच्चों का पेयर बनाया जाता है, ठीक है. दो बच्चे को एक कोई कंटेंट दे दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उनपे उनको अपना खुद से फ्रीली, आप खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से देखो, और जो आपके मन में आता है देखकर, तो वो आप अपने तरफ से शेयर करो एक दूसरे को, ठीक है. तो जैसे कोई भी प्लांट्स दिखा या कोई इंसेक्ट दिखा या एनिमल देखा, कुछ भी उसमें उनको खासियत दिखा, कुछ अलग दिखा, जो चीज वो नोटिस कर सके, उन्होंने नोटिस किया, एक्सप्लोर किया कि हाँ, तो इनके क्या बोले, इनके दो पैर है, दो हाथ है, एक पूंछ है, दो आंख है, जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया तो खुद से, या फिर उनके कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया, उसके जो कैरेक्टर्स है उसे वो पॉइंट आउट किए, ठीक है, लिखा उन्होंने, और फिर एक दूसरे से शेयर किया, ठीक है. तो उससे भी बच्चे खुद से सीखते हैं. इसमें हो गया कि वो खुद से सीख रहे हैं, खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ये भी बहुत एक मददगार स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है साइंस के लिए, और बच्चे एंजॉय करते हैं ऐसे.
आप एक बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, उससे बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, उनसे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता और इसी कारण से वो बर्डन समझने लगता है। साइंस का जो एक्चुअली जो भी कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल्स होता है, जो भी थ्योरी होता है, वो और जितने साइंटिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक नेम्स है, वो सब इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक मात्र जो लेक्चर देना या उनको ऐसे थ्योरेटिकल उनको समझा देना, उससे बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करके जब तक वो नहीं देखेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छी तरह से वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप वर्क। सर नेक्स्ट लाइन, group work. A science knowledge is socially constructed. Group involvement has an impact on the participants' long-term memories. The discovery or investigation of science with peers provides opportunities for social interaction, an element of fun. Moreover, group experiments in primary science act as a foundational experience for secondary work. बच्चे जो है आमतौर पर सोशल इंटरएक्टिविटी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सोशल गैदरिंग्स वगैरह में देखते हैं भीड़ भाड़ बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आसपास लोगों का माहौल, भीड़ भाड़ में, और उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए उनको इस तरह का एक्टिविटी दिया जाना चाहिए, ठीक है, ग्रुप वर्क, जैसे टीम बना के ग्रुप बना के 5-6 बच्चों का, और तब उन्हें वो कोई भी टॉपिक देना चाहिए या कोई प्रॉब्लम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बहुत तरह के उस पर्टिकुलर कंटेंट में 4-5 बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, सबके अपने डिफरेंट आइडियाज क्रिएट होते हैं, दिमाग में आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो करते हैं जो, तो डिफरेंट आइडिया बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं और फाइनली कोई कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप वर्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल स्ट्रेटजी है साइंस टीचिंग के लिए। दरअसल प्राइमरी साइंस में या प्राइमरी क्लासेस में किया गया ग्रुप एक्सपेरिमेंट, और सबसे ज्यादा तब ये होता है सेकेंडरी स्टेज में, जब वो प्राइमरी साइंस में, प्राइमरी स्टैंडर्ड में जब वो कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सेकेंडरी लेवल का जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सारा एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो वो ग्रुप में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि एक बेसिक एक फाउंडेशन उनको मिल चुका होता है ऑलरेडी। तो ग्रुप वर्क एक अच्छा स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है साइंस टीचिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज excursions for developing science understanding. Excursion means, excursion का हिंदी टर्म क्या होता है? तो एक्सकर्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है साइंस टीचिंग में, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी आपने जो आपने क्लास में पढ़ाया या फिर ना भी पढ़ाया हो, तो बच्चे ऐसे भी अगर कहीं आउटिंग पे जाते हैं, ओके, तो बहुत सारे, क्योंकि साइंस जो है रियल लाइफ के जितने एक्टिविटीज होते हैं उसके पीछे साइंस होता है। कोई भी एक्टिविटी आपका रियल लाइफ और डेली लाइफ का एक्टिविटीज होता है उसमें साइंस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आप बच्चे जब बाहर भ्रमण करने जाते हैं, कहीं भी ले जाइए उनको टूर पे, जैसे जू है, ठीक है, प्लानेटोरियम है, बोटानिकल गार्डन है, वहां ले जाइए, तो वहां पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स को ले लीजिए, प्लांट्स में क्या है, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, एडप्टिव प्लांट्स, अदर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जो एडप्ट होते हैं, जैसे ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स में, मेसोफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स क्या है, जो पानी में होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप बोटानिकल गार्डन जाएंगे तो उन्हें तरह तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट देखने को मिलेंगे, उससे जानेंगे, क्योंकि वो लेवल्ड होते हैं वहाँ पर सारे तरह के प्लांट्स, उस तरह का वहाँ पर कंडीशन जो क्लाइमेटिक है, आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर डेवलप किया जाता है, उसी के अंदर वो प्लांट्स को रखा जाता है। तो और उसे पूरा लेवलिंग अच्छी तरह से, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहाँ पर सारे मेंशन सारे किए रहते हैं वहाँ पर पॉइंट वाइज।
तो बच्चे उसे देखते हैं, उसके बारे में डायरेक्ट वो अनुभव करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट्स को, उसका नेम जानते हैं, उस पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, ठीक है। एडेप्टिव जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके थ्योरेटिकल नॉलेज जो क्लास में देने से पहले बच्चे उतनी चीजों को जान जाते हैं, खुद से वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप उनके बाद उनसे पूछिएगा कभी भी क्लासेस में अगर उसके बारे में डिटेल, तो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मैंने देखा था, वो पहले से आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी जान रहे होंगे। तो ये सब बहुत इफेक्टिव ये है स्ट्रैटेजी। ओके सर, नेक्स्ट a science theater play. Any topic can be used to create a play. The script for the play can be written by the students themselves. The play can be performed by as few as 3 actors or with as many as 7 or more actors using costumes. The educational goals of the play, some helpful references and a few frequently asked questions are also included. These scientific plays are dramatic narratives often spoken out to the audience. It is also often a rhythmic quality of voices. या फिर प्ले वगैरह, नाटक, ड्रामा वगैरह, ये सभी बच्चे बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए एक प्ले के थ्रू भी एक मीडियम के रूप में उसे क्या वो कर सकते हैं। तो आप स्कूल्स में एक प्ले भी रखें जो बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं इस प्ले को। इसमें बच्चे क्या करेंगे, 2-3 बच्चे मिलके 3-4 मिनट्स का एक ड्रामा रखते हैं। उसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कोई भी चीज जो साइंस रिलेटेड हो, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। इस ड्रामा के माध्यम से आपको कोई लेसन या संदेश देना चाहते हैं, कन्वे करना। कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों ट्रीज नहीं काटना चाहिए, क्यों ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्यों एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हाँ, एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्यों, व्हाई, क्यों इम्पोर्टेंट है एनिमल्स, Because they disturb our ecosystem. या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग ही, जो लिविंग बीइंग्स है वो अफेक्टेड होंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि 2-3 बच्चे मिलकर इस ड्रामा को बनाते हैं, सारा स्क्रिप्ट उन्हीं का रहता है। वहां से नरेशन जो होता है, जो पीछे से वॉइस दिया जाता है, वो वॉइस भी बच्चे लोग, ये सारा चीज बच्चे लोग ही मिलकर करते हैं। तो इससे वो और उस ड्रामा को प्ले करने के लिए वो ऑब्वियसली कंटेंट भी कलेक्ट करेंगे, उस कंटेंट को समझेंगे अच्छे से, तभी तो वो ड्रामा को प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे ये खुद से इस तरह से भी खुद ब खुद वो सीखते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करते हैं वो। ओके सर, नेक्स्ट मिनी कॉन्फ्रेंसेस। अ सिम्पोजियम इज अ मिनी कॉन्फ्रेंस, मतलब छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। A symposium is a meeting where participants give oral presentations on subjects revolving around a common theme. Each student selects one subtopic from a list, research information on it, prepare and deliver a comprehensive, concise and complete and oral presentation to the class. Each presentation must be at least 3 minutes and not more than 5 minutes in length. A time for questioning will follow each presentation. जैसे यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सेम वही चीज है, जैसे ये मिनी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ओरली या जो भी आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। उसके बाद और ये जो प्रेजेंटेशन होता है जो 5 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, छोटा ही कॉन्फ्रेंस, बोरिंग हो जाता है बात ज्यादा, 1 घंटे का यहाँ तो हाँ। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उस पे, जैसे मैंने ये टॉपिक लिया टीचिंग स्ट्रैटेजी साइंस, ठीक है, वैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक या थीम लेकर, जैसे वाटर कंजर्वेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉपिक लिया वाटर कंजर्वेशन पे कि कैसे हम लोग को वाटर हमारे कैसे इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम वाटर सेव नहीं करेंगे, वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तो इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, या फिर आने वाले जनरेशन को क्या एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, हो सकता है। तो ये सब डिटेल से वो 5 मिनट के उस
कॉन्फ्रेंस में हमें वो प्रेजेंटेशन देना होता है, सारा बताना होता है। Next. हाँ, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आप लोग करते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन देने के बाद जो सामने वाले जो व्यूअर्स हैं वो क्या करते हैं, फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चनिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, concept maps. Write down the most important word or short phrase or symbol for the center. Think about it, circle it, post other important concepts and their words is outside the circle. Edit this first page. Think about the relation of outside items to the center item. Erase, edit on or shorten words to keys ideas. Relocate important items closer to each other for better organization. If possible, use color to organize information like link concepts with the words to clarify the relationships. Okay. इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट मैप्स। इसमें क्या, एक मैप के थ्रू, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर आप कुछ भी बच्चे को समझाते हैं चार्ट पेपर के थ्रू या फिर जो भी बोर्ड पे डायग्राम से, कोई भी या प्रोजेक्टर से आप जो डायग्राम सब दिखा रहे हैं, तो डायग्राम्स के थ्रू बच्चे ज्यादा कैच करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कोई भी थीम अगर समझाना चाहें, जैसे बायोस्फीयर टॉपिक लिए, बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में आप पूरा जितना भी अर्थ से रिलेटेड एटमॉस्फेयर है या अर्थ में जितने लिविंग थिंग्स है, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे रेन कैसे होता है, जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सारी चीज इसमें हम बायोस्फीयर के अंदर हम लोग लर्न करते सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमको बायोस्फीयर के बारे में अगर हमको टॉपिक पे बताना है बच्चे को अच्छे से, तो हम एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू बता सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट मैप में हम क्या करेंगे, जो मेन जो टॉपिक है उससे अर्थ के बारे में हमको बताना है, तो अर्थ को बीच में ड्रॉ करेंगे। अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिस चीज के बारे में हमको बताना है बच्चे को, एक्सप्लेन करना है, उसे उसके टर्म्स या उसके पिक्चर्स को भी हम यहाँ पर दिखा सकते, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे क्लाउड्स है, मॉइस्चर है, रेन है, प्लांट्स है, अर्थ है, ट्रीज, रिवर, लेक्स, ओशन, ये सब के बारे में हमको बायोस्फीयर बच्चे को बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो हम इस और इसमें क्या एक चीज है कि टीचर्स को एक्सप्लेन तो करते हैं, प्लस बच्चे को भी प्रीवियस क्या नॉलेज या क्या वो रखते हैं इससे रिलेटेड, वो भी हमें जानने में टीचर्स को मदद मिलता है, ठीक है। तो टीचर्स इस पे बच्चे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्लाउड का क्या इससे अर्थ से क्या मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है। मॉइस्चर, तो रिलेशन को दिखाने के लिए जो बीच का सेंटर का जो आपका थीम है या जो भी पिक्चर्स है, उससे आपका साइड का जो आपने लोकेट किया है, जो उससे उस टर्म से उसका क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। तो ये बच्चे जब खुद से ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसके कनेक्शन का रिलेशन को, तो इससे मतलब कि बच्चे अच्छा नॉलेज लेवल, उनका नॉलेज लेवल को जान पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं सीखने में, तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो ग्रैब कर पाएंगे। So that's all. So these are all the teaching strategies for science.